हाय फ्रेंड्स, इन दिस सेशन ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी फार्मूला। इन दिस सेशन टेक्स्ट बुक के कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल एज वेल एज एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल चेक करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द सॉल्व्ड एग्जांपल। सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दैट इज बीसीसी। अब जैसे बीसीसी आपको क्लियरली पता चल जाना चाहिए z is equal to 2 with the cell age of 288 picometer. The density of element is also given, that is 7.2. How many atoms are present in 208 gram of element? Fine. So statement दो बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, given data extract कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, write down first given data and then put it into this density formula. So given data extract कर लिया होगा आपने। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज A. सो A क्यूब फाइंड आउट करना है 288 पिकोमीटर। पिकोमीटर इज नथिंग बट 10 to the power minus 12। सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट योर आंसर दैट इज 2.39 into 10 to the power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड स्टेप, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट। नाउ डेंसिटी फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास दिया हुआ है 208 ग्राम, डेंसिटी दी हुई है 7.2 ग्राम, तो ये मिल गया आपको 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इनटू दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे? सो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू दिस इज द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपका टोटल ए क्यूब दैट इज 2.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। माइनस 23 ऊपर चला जाएगा, प्लस 23 हो जाएगा। 28.88 डिवाइड बाय 2.4 अप्रोक्सीमेटली कर लो, यू गेट योर आंसर 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट सेल। दोस्तों अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ है, आधे से ज्यादा लोग यहीं पे न्यूमेरिकल एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट वन, एज इट्स अ बीसीसी स्ट्रक्चर। जो अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। So the total number of atom present in 208 gram is equal to 2 into this 12.08 into 10 to the power 23. Your final answer becomes 24.16 into 10 to the power 23 atoms. So this is all about your solved example 1.3. Next numerical 1.4 solved example. X-ray crystal diffraction shows the copper crystallize in FCC. Once again FCC structure z is equal to 4. Cell age of 3.608 into 10 to the power minus 8 centimeter. In separate experiment, the copper determined have the density of 8.92. Calculate the atomic mass of copper. आपको atomic mass of copper find out करना है। So let's start the numerical. वैसे देखा जाए तो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, सभी को पता होता है कॉपर का मोलर मास है 63.5। बट दोस्तों डू नॉट डायरेक्टली पुट इट एज अ 63.5। ऑब्वियसली ये राउंड अबाउट उसी के आसपास आंसर आएगा, बट यू हैव टू पुट इट इनटू दिस फॉर्मूला। एफसीसी स्ट्रक्चर है तो z इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। m इज इक्वल टू d इंटू एन ए इंटू 8 क्यूब डिवाइड बाय z। 8.92 मल्टीप्लाई बाय na दैट इज एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। This is your a cube 3.608 into 10 to the power 8 whole cube divided by 4. So your answer become 63.1 gram per mole. So this is your solved example 1.4. Next solved example number 1.5. Silver forms a CCP lattice and X-ray study of its crystal shows that edge length of its unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of silver. Atomic mass is 107.9. Simple straight away numerical density of silver you have to find out. So silver atom CCP structure है, that is z is equal to 4. Molar mass of silver is 107.9. A आपको दिया हुआ है 408.6 picometer. Now put it into this density formula. Everything is given. Put it into the formula d is equal to z into m divided by a cube into na. Z is equal to 4 रख दीजिए। a की वैल्यू पता है आपको
m पता है, and Na that is 6.022 into 10 to the power 23. Put it into this formula, you get your answer, density 10.5 gram per centimeter cube. So this is all about your solved example 1.5. Next we moved on to this end exercise numerical. So let's start with the end exercise, that is 1.11. Silver crystallized in FCC lattice. If age length of the cell is 4.07 into 10 to the power minus 8 and density is 10.5 gram per centimeter cube, calculate the atomic mass of silver. अब atomic mass of silver सबको पता है 107.9 के आसपास आएगा. So round about आपका आंसर 107.45 के आसपास ही आना चाहिए. मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी मत रखिएगा, 107.9 उसके आसपास ही आपका आंसर आएगा. गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ऑलमोस्ट ऊपर का ही न्यूमेरिकल रिपीट हो रहा है. लेट्स सी व्हाट द आंसर. सो लेट्स स्टार्ट विथ एंड एक्सरसाइज 1.11. फर्स्ट यू हैव a is equal to 4.077 into 10 to the power minus 8, d is equal to 10.5, z is equal to 4 and Avogadro number. Put it into this formula, make a form of m. क्योंकि मोलर मास ऑफ सिल्वर ढूंढना है तो m is equal to d into a cube into na divided by z. z is equal to 4, d दिया हुआ है a cube into na कर लीजिए, मल्टीप्लाइड डिवाइडेड कर लीजिए, you get your answer 107.43 ग्राम पर मोल. So very simple, very easy, straight away numerical. नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए आगे बढ़ते हैं. Neodymium crystals in body center, that is BCC structure, if the density is 8.55 gram per centimeter cube, calculate the atomic radius. 1 point ahead, calculate the atomic radius of neodymium using its atomic mass is 93U. तो सबसे पहली चीज आपको a क्यूब ढूंढना होगा. a क्यूब के बाद a और a के बाद r, BCC के लिए r का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा एंड देन यू कैन फाइंड आउट द एटॉमिक रेडियस. सो इट इज अ इंपॉर्टेंट वन. थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, पता चल जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद 1.13. सो यू आर गिवन d is equal to 8.55, molar mass is given, that is 93. It's a BCC structure, so that's why z is equal to 2. Put it into this formula, d is equal to z into m divided by na into a cube. Make a form of a cube. A cube is equal to z into m divided by d into na. All the values are given. This is the beauty of this chapter. ये चैप्टर के न्यूमेरिकल के अंदर सारी वैल्यू, आउट ऑफ दिस 4, 3 वैल्यूज आर गिवन, 4th वैल्यू आपको ढूंढना है. मेक ए फॉर्म ऑफ ए क्यूब, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए, यू गेट योर आंसर a क्यूब, दैट इज 3.612 into 10 to the power 23. क्यूब रूट निकाल लीजिए, क्यूब रूट निकालोगे तो योर आंसर बिकम्स a is equal to 3.306 into 10 to the power minus 8. Once you get a, now we moved on to this radius, just because आपको रेडियस पूछा है. So BCC के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या है? r is equal to √3/4a. a की वैल्यू अभी रिसेंटली आपने ढूंढी हुई है, तो √3/4 into a की वैल्यू दैट इज 3.306 into 10 to the power minus 8. मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, यू गेट योर आंसर. योर आंसर इज 14.32 nanometer. So this is all about your 1.13. Next we moved on to this 1.15. 1.15, copper crystallized into this FCC lattice with edge length of 3.61 into 10 to the power minus 8 centimeter. Show that, calculate the density in arrangement with its measured value of 8.92. अब आपको प्रूफ करना है कि कैलकुलेटेड डेंसिटी थियोरेटिकल डेंसिटी दैट इज 8.92 जितना ही है. सो मेनी टाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज कि सर डेंसिटी दिया हुआ है, एज लेंथ भी दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल में करना क्या है? सो हियर इन केस आप याद रखिएगा कि शो दैट कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विथ, मीन्स नियरली सेम होना चाहिए किससे? मेजर्ड वैल्यू जो थियोरेटिकल वैल्यू है 8.92 से. सो आपका आंसर नियर बाय 8.92 के आसपास ही आना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल 1.15.
लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए. A is equal to 3.61 into 10 to the power minus 8. M कॉपर इज मोलर मास इज 63.5. FCC है तो दैट्स व्हाई Z is equal to 4. So D is equal to Z into M divided by A cube into Na. So put all this value. 4 multiplied by 63.5 divided by 3.61 into 10 to the power minus 8 cube multiplied by Na. सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? योर आंसर इज 8.97. theoretical वैल्यू थी 8.92 एंड योर आंसर नियरली इक्वल टू द सेम. सो कंक्लूजन लिख लीजिए. Hence the calculated density is in agreement with its measured value. So nearly equal to same आ रहा है. theoretical and practical दोनों डेंसिटी सेम हो रही है. So this is all about your 1.15. Next we move on to this 1.16. 1.16 समथिंग डिफरेंट. डेंसिटी से कुछ अलग न्यूमेरिकल है बट बहुत इजी है. सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है. और एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज अ फॉर्मूला ऑफ निकल 0.98, ऑक्सीजन 1.0. What fractions of nickel exist as Ni+2 and Ni+3 ions? Once again, statement 2 बार पढ़ लीजिएगा. Analysis shows that nickel oxide has the formula Ni 0.98, oxygen 1.0. What fractions of nickel exist as Ni+2 and Ni+3 ions? Let's start the numerical. So सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं. Ni 0.98, oxygen 1.0 means Ni is to O. That is 0.98 is to 1.0. इसका मतलब हुआ 98 is to 100. That is your first step. Total charge on 100 O minus 2 ion means 100 multiplied by minus 2 is equal to minus 200. So ऑक्सीजन के ऊपर टोटल चार्ज NiO, निकल ऑक्साइड के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया? -200. अब Ni exists in a two ways, Ni+2 and Ni+3. तो सबसे पहले अज्यूम कर लीजिए कि Ni+2 के कितने आयन है? X. तो Ni+3 के कितने होंगे? टोटल 98 है. तो Ni+3 हुए 98 माइनस X. वंस अगेन हमने सबसे पहले NiNO का रेशियो ढूंढ लिया है. O है 100, Ni है 98. Ni टोटल 98 है. Ni के अंदर दो है स्पीशीज, Ni+2, Ni+3 मीन्स निकल +2, निकल +3. सो निकल +2 है X, तो बाय डिफॉल्ट Ni+3 हो गया 98 माइनस X. परफेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. टोटल चार्ज ऑन Ni+2 आयन इज इक्वल टू X +2 है, तो दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ +2, दैट इज 2X. टोटल चार्ज ऑन Ni+3 आयन दैट इज 98 माइनस X मल्टीप्लाई बाय +3, तो वो बन जाएगा 294 माइनस 3X. सो सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट 2X प्लस 294 माइनस 3X प्लस माइनस 200 इज इक्वल टू 0. सो इट इज इक्वल टू 0 क्यों किया? जस्ट बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल स्पीशीज. NiO उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. चार्ज नहीं है का मतलब दैट इज CO3 माइनस 2, PO4 माइनस 3, ऐसा कोई चार्ज नहीं है. सो न्यूट्रल है, इसीलिए इज इक्वल टू 0. सो 2x कहां से आया? Ni+2 का. देन प्लस 294 माइनस 3x ये कहां से आया? Ni+3 का. प्लस माइनस 200 कहां से आया? ऑक्सीजन का. इज इक्वल टू 0. सो माइनस x प्लस 94 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 94. सो Ni+2 हो गए 94 एंड Ni+3 हो गए 98 माइनस 94 इज इक्वल टू 4. अब मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे न्यूमेरिकल एंड कर लेते. क्यों? क्योंकि सर x तो मिल गया हमें, बट आपको व्हाट फ्रैक्शन पूछा है. फ्रैक्शन का मतलब मोल फ्रैक्शन की तरह. 94 है Ni+2, Ni+3 है 4. तो लास्ट स्टेप करना मत भूलिएगा, दैट इज अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन. Hence, fraction of Ni+2 is equal to 94 divided by 98 is equal to 0.959 and Ni+3 4 divided by 98 is equal to 0.041. लास्ट स्टेप लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क कट हो जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल सॉलिड स्टेट, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन. थैंक यू.